Hello everyone. In this video, we will discuss need and importance of international management in the subject International Human Resource Management. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start discussing need and importance of international management. In the earlier video, we discussed meaning, definition and objectives of international management. What is international management? International management is the way of practicing the management techniques in the international environment. It is the management of international business operations for an organization that conduct business in more than one countries. मीन्स जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है सो उसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट किया जाता है जिसमें कि मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करने के लिए. So here we will discuss what is the need and importance of international management for the business organizations who are conducting their business activities at the international level. So the first one is high living standards. How international management provides the high living standards to the people. कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इंडिकेट करती है वह कंट्रीज जिनके पास एडवांटेजेस हैं रॉ मटेरियल में, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या क्लाइमेटिक कंडीशंस में. किस तरह से कुछ कंट्रीज हैं जहां पर रॉ मटेरियल चीप रेट्स पर अवेलेबल है, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज चीप रेट्स पर अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां की फेवरेबल है. किस तरह से फेवरेबल? दे आर फेवरेबल इन प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर गुड्स and can produce the products at low cost and also of high quality. So जब countries low cost पे high quality products produce कर सकती हैं so customers जो हैं various countries में वह उन products को buy कर सकते हैं with same amount of money because कम cost पे product available है. एक country अगर produce कर रही है वहाँ पे favorable conditions है वह दूसरी countries में उस product को sale करेगी तो वह customers जो कि due to high price product को purchase नहीं कर पाते थे वह भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे और वह हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और कम प्राइस पे उनको अवेलेबल है सो दे इट कैन ऑल्सो इन्हांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल थ्रू इन्हांस्ड परचेजिंग पावर एंड कंज्यूमिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है बिकॉज कम कॉस्ट पर वह प्रोडक्ट अब अवेलेबल है मार्केट में ड्यू टू द इंटरनेशनल बिजनेस. Next is increased socio-economic welfare. How international management provides increased socio-economic welfare. इंटरनेशनल बिजनेस इन्हांस करता है कंजम्पशन लेवल को और लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर को. जो भी ट्रेडिंग कंट्रीज हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके इकोनॉमिक वेलफेयर और कंजम्पशन लेवल को कैसे इन्हांस करता है. फॉर एग्जांपल द पीपल ऑफ चाइना एरिया नाउ enjoying a variety of products of various countries than before as China has been actively involved in international business like Coca-Cola, McDonald's range of products और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑफ जापान, कॉफी ऑफ ब्राजील. चाइना बिकॉज पहले के कंपैरेटिवली अब ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वह उन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं जैसे कि डिफरेंट कंपनीज हैं कोका कोला, मैकडोनल्ड्स या फिर जापान की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, कॉफ़ी ऑफ ब्राज़ील है. तो यहाँ पर जो चाइनीज़ कंजम्पशन लेवल है और सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर है वह इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इंटरनेशनल business and international management. Next is wider market. International business widens the market and increases the market size. इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट को वाइडन करता है, मार्केट साइज को भी इंक्रीज करता है जो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं. therefore the companies need not depend on the demand of the products in a single country or customers taste and preferences of single country because यहाँ पर जो कंपनीज हैं अपनी बिजनेस ऑपरेशन एक सिंगल कंट्री में परफॉर्म नहीं कर रही, सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंट्री में परफॉर्म नहीं कर रही, वह एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं. तो अगर उनको डिमांड के लिए भी एक सिंगल कंट्री की डिमांड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता या फिर सिंगल कंट्री के कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. अगर एक कंट्री में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो हो सकता है दूसरे कंट्री में वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, वहाँ के जो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस है कस्टमर्स के वह उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही है. सो ड्यू टू द इन्हांस्ड मार्केट एयर फ्रांस दैट इज अ
France's company now mostly depend on the demand for air travel of the customers from countries other than France. एयर फ्रांस एक फ्रांसीस कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। वहाँ वह सिर्फ अपने जो फ्रांस के कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड पर डिपेंड नहीं करती, वह बिकॉज दूसरी कंट्रीज के जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को भी मीट करती है। सो this is true in case of most of the MNCs like Toyota, Honda, Xerox, कोका कोला। जितने भी MNCs हैं सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड या फिर एक कंट्री की डिमांड पर डिपेंडेंट नहीं है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, तो वह जो प्रोडक्ट की डिमांड है डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर्स की मीट करती है। तो इस वजह से जो मार्केट साइज है वाइडर मार्केट होती है और उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है। Next is reduced effects of business cycle. The stages of business cycle vary from country to country. जो business cycle की stages हैं हर एक country में vary कर सकती हैं, इसलिए जो MNCs हैं, multinational corporations हैं, वह कई बार शिफ्ट कर लेती हैं किसी एक कंट्री से जहां पर उनको रिसेशन फेस कर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। एक कंट्री है जहां पर रिसेशन चल रहा है, उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे, तो वह दूसरी कंट्री में जहां पे बूम कंडीशंस हैं वहां पर एंटर कर लेती है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती है। सो दिस इनेबल्स द इंटरनेशनल फर्म्स टू एस्केप द रिसेशनरी कंडीशंस। तो इसके द्वारा वह रिसेशनरी कंडीशन, अगर एक कंट्री में रिसेशन है, वहां पर सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर पा रही, तो वह दूसरी कंट्री में बूम पीरियड है जहां पर वहां पर एंटर करके अपनी सेल्स को इनहांस कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे बिजनेस साइकिल का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस्ड रिस्क, both commercial and political risk are reduced for the companies engaged in international business due to the spread in different countries. बिकॉज हर एक कंट्री में जो पॉलिटिकल और कमर्शियल इश्यूज हो सकते हैं उसकी वजह से रिस्क हो सकता है बिजनेस में, लेकिन अब एक कंपनी सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, वह डिफरेंट कंट्रीज में अपनी बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, तो जो कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क है किसी भी एक कंट्री को उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। मल्टीनेशनल्स जो कि ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, मल्टीनेशनल कंपनीज विच वर ऑपरेटिंग इन erstwhile USSR, USSR मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज, were affected only partly due to their safer operations in other countries. तो वहां पर जब पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हुई जिसकी वजह से उन कंट्रीज को कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशंस फेस करनी पड़ी, तो उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज उनकी दूसरी कंट्रीज में सेफर कंडीशंस थी, वहां पर रिस्क नहीं था, पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल रिस्क नहीं था। बट द डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ देन यूएसएसआर कोलैप्स्ड कंप्लीटली। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज है जो सिर्फ यूएसएसआर में ही अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही थी, उसके अलावा किसी और कंट्री में नहीं कर रही थी, उनके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ और वह बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स हो गई। सो international management, international business provides the companies an opportunity to reduce their political and commercial risk. Large scale economies. Multinational companies, due to the wider and larger markets, produce larger quantities. मल्टीनेशनल कंपनीज का वाइडर मार्केट शेयर है, ज़्यादा कस्टमर्स डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की ड्यू टू द लार्जर मार्केट शेयर, तो वह लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करती है। और जब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है? दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, लाइक रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाएगा तो उनको कुछ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिलती हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टाइज, उनका एक्सपर्टाइज आ जाता है कि नहीं भी जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, इनोवेशंस कर सकते हैं वो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। सो दीज बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू दोज कंपनीज। नेक्स्ट इज पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट। पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट वह मार्केट जिसमें अभी तक किसी भी बिजनेस फर्म ने एंटर नहीं किया। So the international business provides a change of exploring and exploiting the potential markets which were untapped so far.
तो जो मार्केट्स अभी तक टैप नहीं हुई, मीन्स जहां पर किसी भी बिजनेस फर्म ने जिस मार्केट की डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट नहीं की, वहां पर वह बिजनेस फर्म्स एंटर कर सकती हैं, उस पोटेंशियल मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। ये मार्केट्स उन बिजनेस फर्म्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वह डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरेटिवली हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाटा sells shoes in UK at around rupees 8,000, whose price is around rupees 1,200 in India. तो इंडिया में उसका प्राइस कम है, बट वह उस प्रोडक्ट को अगर यूके में सेल करते हैं तो उनको हाई प्राइस पे वह सेल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट जहां पर वह प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है, तो वहां पर वह हाई प्राइस उसका चार्ज कर सकती है। Provides opportunity to challenge domestic business. International business firms provide opportunity to the domestic companies. These opportunities include technology, management expertise, market intelligence, product developments. तो इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कौन सी बिजनेस फर्म को? डोमेस्टिक बिजनेस फर्म्स को। और ये अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? जैसे कि टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि जापानीज फर्म्स हैं लाइक होंडा, यामा, सुजुकी, कावात्सकी, these have combined to form the joint ventures with Indian companies to form Hero Honda, Birla, Yamaha, Maruti Suzuki, Kawasaki, Bajaj to share technology and product development expertise. So Japanese companies ने Indian companies के साथ joint ventures किए जिसमें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर रही है और जो उनके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज है वह इंडियन कंपनीज के साथ शेयर कर रही हैं। सो इसी तरह से जो एमएनसीज हैं वो डोमेस्टिक बिजनेस को इनिशियली चैलेंज देती हैं, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज के पास एक्सपर्टाइज ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, तो डोमेस्टिक बिजनेस को इनिशियली वो चैलेंज करती हैं। देन डोमेस्टिक फर्म्स develop themselves to meet these challenges. For example, the entry of white goods MNCs, LG and Samsung pose challenges to the homegrown companies like Godrej, Videocon in Indian consumer durables market. But Godrej and Videocons had evolved and reinvested themselves to face up the challenges. तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जैसे कि गोदरेज या वीडियोकॉन जो कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में काम कर रही थी, लेकिन उनको चैलेंज फेस करने पड़े दूसरी कंट्रीज की कंपनीज से लाइक सैमसंग, एलजी। तो लेकिन इन कंपनीज ने क्या किया? हार्ड वर्क किया और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया और न्यू इनोवेशंस की, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और उसके द्वारा उन चैलेंजेस को मीट किया। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. इंटरनेशनल बिजनेस लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, Brazil specializes in coffee, Kenya in tea, Japan in automobiles and electronics and India in textile markets. तो यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस फर्म्स हैं, हर एक कंट्री की अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन है, जो कि कई कंट्रीज हैं जिनके पास डिवीजन ऑफ लेबर की स्पेशलाइजेशन है, कईयों के पास रॉ मटेरियल एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो these specialization lead to the international business. तो जिस कंट्री के पास जो भी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है या फिर डिवीजन ऑफ लेबर की फैसिलिटी अवेलेबल है, वह दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है और वह उन प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में सेल कर सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज. International business leads to the economic growth of the companies who are doing business. Because of specialization, division of labor, enhancement of productivity, posing of the challenges and development to meet those challenges, these increases the capability of the organizations as well as the innovations and the creations to meet the competition. Because international business में competition high है, तो business firms को innovations भी करने पड़ते हैं time to time. उस competitions को कैसे meet करना है उसके लिए भी उनको time to time innovations करने पड़ते हैं, नई technology adopt करनी है, challenges को meet करना है। तो यह सब चीजें लीड करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, बिकॉज जब एक कंट्री की कंपनीज इनोवेशंस करती हैं तो है इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है नेशंस की. इंटरनेशनल बिजनेस पर्टिकुलरली हेल्प द एशियन कंट्रीज लाइक जापान, ताइवान, कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स.
Next is optimum and proper utilization of world resources. International business provides for the flow of raw materials, natural resources, and human resources from the countries where they are in excess supply to those countries where they are in short supply. कुछ कंट्रीज के पास जो कुछ वर्ल्ड रिसोर्सेज है वह शॉर्ट क्वांटिटी में अवेलेबल है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन वही सेम रिसोर्सेज दूसरी कंट्रीज के पास एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो वह कंट्रीज जिनके पास एक्सेस सप्लाई है उन प्रोडक्ट्स की, वह उनको दूसरी कंट्रीज को सेल कर सकते हैं जिनके पास शॉर्ट सप्लाई है और उनको उसकी जरूरत है। For example, flow of human resources from India, consumer goods from UK, France, Italy, Germany to the developing countries. Thus, in turn, it helps in the optimum and proper utilization of the world resources. Cultural transformation. International business benefits are not purely economic or commercial, but it also leads to cultural transformation. They are even social and cultural. These days, we observe that the West is slowly tending towards East and East is tending towards West. इसका मीनिंग यह नहीं है कि जो जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं या फिर वैल्यूज ऑफ ईस्ट अबोलिश हो रहे हैं, वह वेस्ट के द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि हर एक कंट्री दूसरे कल्चर से अडॉप्ट करती है। कुछ there are some ethics in every culture which are adopted by different countries. Thus, there is a close cultural transformation and integration by the business units as well as by the different countries who are involved in the international business operations. Next is knitting the world into a closely interactive traditional village. International business ultimately knits the global economies, societies, and countries into a closely interactive traditional village where one is for all and all for one. International business पूरे वर्ल्ड को एक क्लोजली इंटरेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज में कन्वर्ट कर देता है। एक ट्रेडिशनल विलेज जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज। बट इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से वह एक इस तरह का विलेज बन चुका है जहाँ पर सभी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन देयर बिजनेस मैटर्स। बिकॉज जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वहाँ पर सेल एंड परचेज कर रही है गुड्स की, या फिर अपने प्रोडक्शन हाउसेज ओपन कर रखे हैं, सो वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है कंट्रीज के बीच में, और जो वर्ल्ड है एक ट्रेडिशनल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एक होल वर्ल्ड एक यूनिटी में काम करता है, सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली काम करते हैं और इंटरेक्टिव वे में बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। So this is the need and importance of international management. In the next video, we will discuss what is the scope of international management. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.